Good morning, students. Now today I am continuing the activity 1, question number 5, fill in the blanks. Yesterday I explained about the expanded and short form. The expanded form, suppose if any number is given, that is 2, 3, 7, 8. The expanded form, how we write the expanded form of this number? First we take this number from left to right we write it. So the first number we see, that is 2, and how many digits? The 3 digits are there. So we write the 3 digits. Then plus sign, the next digit we write. After that, how many zeros we put? That is 2 zeros. Then the next digit we write. Then from in place of this digit we write the 0. Then we write the single digit, that is 8. This is the expanded form. And in short form, how we write this expanded form is given, that is 3000 plus 6. Then the short form, how we will write the short form of this? First we see this 3. After that, how many zeros? The 3 zeros. उसके बाद हमने देखा कि कोई भी डिजिट नहीं है जिसके बाद में 2 जीरो लग रही है, मीन्स कि 1000 के बाद में हमारी 100 प्लेस मिसिंग है, तो उसकी जगह हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? 0. उसके बाद टेंस 1 डिजिट, कोई भी यहाँ पे ऐसी डिजिट नहीं है जिसके साथ 1 0 लग रहा है, इट मीन्स 10 डिजिट भी मिसिंग है, तो उसकी जगह भी हमने क्या लगा दिया? 0. देन वी राइट द सिंगल डिजिट. तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म था. इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? इस तरीके से 3006. और जब हम इसको वापस देखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो ये इसी तरीके से लिखेंगे. 3 के बाद ये 3 डिजिट है, 3 जीरो लग गए, देन 0 है, तो यहाँ पे हम लिखें चाहे ना लिखें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. 0 मीन्स नथिंग, है ना. सो वी राइट द सिंगल डिजिट 6. तो हमने चेक कर लिया कि जो एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है उससे शॉर्ट फॉर्म जो हमने लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है. दिस I will explain yesterday. Now today we will continue this blanks. So number first fill up the blanks is the successor of 1000 is dash. यहाँ पे हमें सक्सेसर फाइंड आउट करना है 1000 का. एंड नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू नो दैट इज द मीनिंग ऑफ अ सक्सेसर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सक्सेसर? सक्सेसर का क्या मतलब होता है? दैट यहाँ पे सक्सेसर का मीनिंग ये है, द whatever the number is given, the next number, that in given number we add plus 1, that is the successor. हमने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा है the after and before. तो आफ्टर अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या होगा? सक्सेसर. सपोज द एग्जाम्पल आई एम गिवन हियर, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. The 26, this number is 26. After the number 26, that is 27. 26 के बाद वाला नंबर क्या है? 27. और हम क्या कहें? The successor of 26 is 27. हम जब इसको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते थे तो वहाँ पे ये टर्म आता था आफ्टर एंड बिफोर. तो आफ्टर जहाँ हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा सक्सेसर, मीन्स की द नेक्स्ट नंबर वी एड इन दिस प्लस 1, देन वी गेट दैट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द गिवन नंबर. That is the meaning of a successor. Now you can understand the meaning of a successor. Successor में हमें क्या करना है? जो given number दिया है उसका अगर हम next number लिखें, that is the successor of this number. Or we can say that plus 1 we add in this number, the given number. हम यहाँ पे अगर plus 1 कर देते हैं तो जो हमारा plus 1 के बाद जो आंसर आएगा, that is the successor of the given number. And here we write 1001.
The successor of 1000 is 1001. The next example I given, that suppose the question is given the successor of 2008. Then the successor of 2008 is 2009. क्योंकि 8 के बाद जस्ट कौन सा नंबर आता है 9. And if we can say the successor of 2009, that is the 2010, because after 9 the next number come is 10. So in this way we can find out the successor of any number. Now the next example, fill up the blanks, that is the predecessor of 999, means 999 is dash. Now what is the meaning of predecessor? That is the given number we can write just before the number. जो भी नंबर हमें दिया है इसके जस्ट पहले वाला नंबर लिखें, that is the predecessor. और we can say -1. जो भी हमें नंबर दिया है उसमें अगर हम -1 कर दें और जो आंसर आएगा that is the predecessor of the given number. अगर हम यहाँ पे -1 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 998. और we can say 999 के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर होता है 998. That is the predecessor. Now the next example I give you, that is here I write the predecessor. The number is that is 237, and we can find out the predecessor of this number. What is the answer? The predecessor of this number is 236. अगर इस गिवन नंबर में हम -1 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा 236. और वी कैन से बिफोर द नंबर दिस नंबर, दैट इज दिस नंबर, इट इज 236. दैट इज द predecessor. Now you can understand these two, successor and predecessor. So here the predecessor of 999 is 998. Now the next is the place value. The place value of 2 in 672 is dash. अब यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पर्टिकुलर डिजिट की ही प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जैसे यहाँ पर हमारी 2 की हमें फाइंड आउट करना है. 2 कौन सी प्लेस पर है? 1s प्लेस पर है. इट मीन्स 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 2. अगर हमारी फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू द अनदर डिजिट दैट इज 3875. अब यहाँ पे हमें 8 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम देखेंगे 8 कौन सी प्लेस पर है. 100 प्लेस पे है तो 8 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 800. ऐसे ही अगर यहाँ पे हमारा 3 है, इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 हमारी कौन सी प्लेस पर है 1000. तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3000. तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी 3000. तो जिस भी डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस प्लेस से हम मल्टीप्लाई करके प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ द नेक्स्ट दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 in 6028 is dash. Now in this we can find out the place value of 0. यहाँ पे हमें 0 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम देखेंगे 0 कौन सी प्लेस पर है. हमारा 0 100 प्लेस पर है, लेकिन 0 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा
आएगा? 0. That's why if we find out the place value of 0, then the answer is 0. कभी भी 0 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आंसर हमेशा 0 आएगा, चाहे वो 1000 प्लेस पे हो, चाहे वो 10s प्लेस पर हो, चाहे वो 1s प्लेस पर. Now the next question, that is form the smallest and greatest 4-digit numbers using the digits 8, 0, 3 and 6, each only once. Students, first you understand the question carefully. In this question, what the question says, first you form the smallest and greatest 4-digit number. हमें smallest of greatest 4-digit number form करना है using this digits. ये digits दे रखी है, इसको use करते हुए each only once, इन digit को सिर्फ एक ही बार हमें use करना है. So how we write the smallest 4-digit number? First we write the smallest 4-digit number. अब हम सबसे पहले smallest 4-digit number फॉर्म करेंगे. कैसे फॉर्म करेंगे smallest 4-digit number? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे 4 digit जो दी है उसमें सबसे smallest कौन सा है? Yes, that is 0. You all say that is 0 is the smallest among all these digits. But we may not write the 0 first. हम 0 को यहाँ पर पहले नहीं लिखेंगे. After 0 we see which digit is the smallest. उसके बाद हम देखेंगे कौन सा डिजिट हमारा स्मॉलेस्ट है, दैट इज 3. तो सबसे पहले जब हम स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे 4-digit नंबर, तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा सबसे पहले लिखेंगे? इसमें हम 3. उसके बाद हम 0 लिखेंगे. द सेकेंड प्लेस पे हम कौन सा डिजिट लिखेंगे? 0. उसके बाद हम देखेंगे कौन सा स्मॉलेस्ट है, दैट इज 6. Then 8. So this is the smallest 4-digit number, that is 3068. Why we have not write the 0 first? हमने 0 first में क्यों नहीं लिखा जबकि वो सबसे smallest है? फिर भी हमने 0 को सबसे पहले इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 0 अगर हम सबसे फर्स्ट में लिखते तो ये ओनली 3-digit नंबर ही होता, 4-digit नंबर नहीं फॉर्म्ड होता, बिकॉज 0 हैव नो वैल्यू. किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लिखा हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. लेकिन अगर बाद में अगर 0 लिखा है तो उसकी वैल्यू होती है. ये आपको अच्छे से रिमेम्बर रखना है. That's why when we write the smallest 4-digit number, then we write the next number. We find the next number smallest after 0. 0 के बाद जो भी नंबर हमारा smallest होगा उसको पहले लिखेंगे and in second place we write the 0. Then the स्मॉलेस्ट नंबर से थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखकर इस तरीके से हम 4-digit स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे. नाउ द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर. हाउ वी राइट द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर? द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर वी राइट द ग्रेटेस्ट डिजिट फर्स्ट. हम यहाँ पर देखेंगे इन सब डिजिट्स में से सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट डिजिट लिखेंगे, दैट इज द 8. 8 सबसे बड़ा है इसमें से. देन उससे छोटी डिजिट कौन सी हुई? 6. फिर उससे छोटी डिजिट हमारी कौन सी आएगी? 3. फिर उससे सबसे छोटी स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी हुई? दैट इज 0. तो जब हम ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर फॉर्म करते हैं तो हमारे क्या आएगा? 8630. तब हमारी ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर क्या बनेगा? 8630. यहाँ पे सबसे लास्ट में हमने
क्या मेंशन किया है? 0, जो सबसे स्मॉलेस्ट था। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करते हुए हम सबसे लास्ट में 0 लिखेंगे, लेकिन स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर्म करते हुए 0 की प्लेस कहाँ पे आएगी? हमेशा सेकेंड प्लेस पे। यहाँ से जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो सेकेंड प्लेस पे हम 0 लगाएंगे। Now understand how we write the smallest and greatest number.